करता हूँ और प्रभु का नाम पे, प्रभु का सारा बच्चों लोग को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं वंदना करता हूँ। एक छोटा सा प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन के पास हैं। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪರು ಮಹಾಕೃಪೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯುವ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಮತ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆಯ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಂತ ವಿವೇಕ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದೇವರೇ, ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅವರು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯಾ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾ ಸಹಾಯಿಸಿ ದೇವರೇ, ತನ್ನನ್ನು ತಾ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸುಸಮಾಚಾರವನ್ನು ದೇವರೇ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಾಳ್ವಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪಾದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆವಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಯ್ಯ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಗಳ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇವಕರಿಗೂ ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. हालेलुया. प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ. मैं समझता हूँ अनुकोता మీకు అందరికీ వచనం అర్థమైంది నుంచి एक वचन हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वचन, దేవుని ఎదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుటను ఆయన ప్రత్యక్షత తోడు ఆయన రాజ్యము తోడు నేను ఆనబెట్టి చెప్పినదేమనగా. సెకండ్ కూడా చదవండి. వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడము, సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. आमीन. वचन पौलोस लिख रहा है तिमोथी को, हे तिमोथियस, और आज हम लोग को भी परमेश्वर का बेटा पौलुस बोल रहा है, तिमोथी मैं तो जाने का टाइम हो गया, तुम सुवार्ता करना ही है. मैं परमेश्वर का सामने बोल रहा हूं तिमोथी, और जो न्याय तीर्प करने के लिए आने वाला यीशु मसीह उनका सामने मैं बोल रहा हूं. उनका ऊपर और उनका राज्य के ऊपर मैं आना कर रहा हूं. प्रॉमिस आप क्या करने का? सुवार्ता करना है. हालेलुया. तो सुवार्ता करने का एक आदमी को निर्बंध है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, बल्कि परमेश्वर बहुत वचन में हम लोग को बात कर रहा है. ब्रदर्स, मैं बहुत खुशी हूं क्योंकि आज के दिन हम सभी लोग को इधर एक सुवार्ता करने के लिए भी समय मिल रहा है. मैं अपना पास्टर जी के लिए मैं बहुत खुशी करता हूं. मैं बहुत खुशी करता हूं मेरा जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर आपका बेटा जो पास्टर जी है आपको वचन के अनुसार चल रहा है. केवल तिमोथी नहीं करने का सुवार्ता, तिमोथी का सारा बच्चों को करना है. सुवार्ता तिमोथी एक आदमी कर तो नहीं होएगा, हम सभी लोग करने का, बल्कि परमेश्वर मैथ्यू वचन में बोल रहे हैं, हम लोग मैथ्यू का समाचार बोल रहे हैं. कैसा बोल रहे हैं इसको? तिमोथी को बोले तो परमेश्वर का सामने, परमेश्वर के नाम पे और उनका स्वर्ग में मैं प्रॉमिस आने करके मैं बोलता हूं आप सुवार्ता करना है. तो सुवार्ता हम सभी लोग को ब्रदर्स निर्बंध है, क्योंकि पास्टर जी हम सभी लोग को प्रोत्साहन करता है. हम सभी लोग को कभी भी उन्होंने
ये मेरा है, मैं बोल के कभी भी पास्टर जी का मुंह से मैं सुना नहीं है। ऐसा सभा आज, ऐसा संघ आज बहुत कमती है, बहुत कमती है। मैं देख मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं सुवार्ता करने के लिए अभी 3-4 साल से मैं सुवार्ता कर रहा हूँ। बहुत सारा पास्टर जी लोग अपना कुर्सी से निकलेगा नहीं है, ये मैं किसी को देगा नहीं है। 40 साल से तुम लोग उधर ही बैठो, मैं इधर रहेगा, मैं जो बोलते हैं वो सुनो, आप जाओ। कितनी सभा ऐसा मैं देखा है। मैं बोलना चाहता हूँ, ऑनर भी है मेरा कलीजे में बोला पास्टर जी को, पास्टर जी ये सारा को आप ऐसा बैठा तो ऐसा ही रहेगा, ये మీరులా కూస్తే ఇలాగే కూసిపోతారు వారు. మరి సువార్త ఎప్పుడు చేయాలి? పాస్టర్ జీ ప్లీజ్ నేను చేయముక్తా మీకు. पास्टर जी अंदर को इच्छा मेरे अंदर को तुम प्रोत्साह करो। मेरे पास्टर जी को मैं बोला गाँव में ये आपका काम है पास्टर जी। ओके, मैं तो परमेश्वर मेरे को निकल दिया इसके गुम्प से, मैं अभी जाएगा सुवार्थ भूमि में, लेकिन आपका हाथ में भी बहुत लोग है, बहुत सुवार्थिक है, बहुत लोग इधर बैठा है। वो लोग कितना सा ऐसे बैठने का, मैं तो में आके 40 साल हो गया, मेरा 70 घर में कोर्स सुवार्थिक है, इसमें भी कितना यौवनस्थ लोग है, पूरा बर्बाद हो रहा है, कापर सही नहीं है। ऐसे बोला उसको, पास्टर जी आपका मेरा जिम्मेदारी है, हम सुवार्थ करना है और दूसरा को बनाना भी है, शिष्य बनाना भी है। हालेलुया। तो मैं ब्रदर्स में बहुत आनंद हो गया, परमेश्वर को वचन में सुबह पढ़ रहा था, बहुत आनंद हो गया। और परमेश्वर वचन के अनुसार मैं आज जिएगा, और ये दुबई प्रांत में अपना क्रिस्त संगम और भी इधर का सुवार्थिक बहुत दुनिया में जाना चाहिए, नित्य जीव लेके जाना चाहिए। परमेश्वर आप लोग के लिए सुबह बहुत प्रार्थना की हो ब्रदर्स, क्योंकि हम सभी लोग ये जिम्मेदारी है, उसका स्वर्ग का ऊपर आनी है, प्रॉमिस है। तिमोथी का हम सभी लोग को सुवार्थ करना, सुवार्थ को संभालना, सुवार्थ के अंदर हम लोग जीना, ये परमेश्वर का एक निर्बंध है ब्रदर्स। वो मेरे को कन्नड़ में तो बहुत अच्छा है, बोल रहे ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವರ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವರಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ प्रत्यक्षते, उसका प्रत्यक्ष के ऊपर में आने कर बोलते हैं परमेश्वर। पौलुस ने ओह आप सुवार्ता करना है, सेकंड वचन में बोलता है देवर वाक्य सार, प्रभु का वचन तुम प्रकट करो, अनुकूल समय में अनानुकूल समय में। तो हमको बहुत सारा अनानुकूल समय आता है, अनुकूल समय बहुत कमी है हमको, अनानुकूल बहुत है, लेकिन इसका अंदर దీంట్లో మనం ఎలా జీవిస్తున్నారు, ఎలా మనం సువార్త కోసం సిద్ధపడుతున్నారా? అనుకూలత సమయం మనకు తక్కువ ఉంది, అనానుకూలమే చాలా ఉంది మన జీవితంలో. ఇప్పుడు డ్యూటీ చేయాలి, డబ్బులు చేయాలి, అక్కడ వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ దీంటి మధ్యలో మనం ఈరోజు ఎక్కడున్నారు? నిజంగా మనం ప్రభు దగ్గర వెళ్తున్నారా? ప్రభు సువార్త కోసం మనం సిద్ధపడుతున్నారా? ఈ విషయం మనం ఈరోజు మనం అందరికీ బ్రదర్, మీకు నాకు దేవుడు ఈరోజు వచనంతో మాట్లాడుతున్నారు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಅನುಕೂಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು. उसके आसक्ति का व्यक्ति क्या बोल रहा है तेलुगु में? आसक्ति का आदमी, आसक्ति का मतलब आसक्ति हमारा जीवन में होना चाहिए बोलते हैं। तो ये आसक्ति हमारे जीवित में है क्या नहीं है, या वीकली वीकली चर्च में जाना जा रहा है, यही है कि हमारे जीवित में भी हम हमारा दिल को भी परखना है ब्रदर्स, क्योंकि वचन का साथ में परमेश्वर इतना दिन बहुत बात की हमको, कितनियों बात परमेश्वर आज तक ये सभा में भी हमसे बात किया है। तो ये वचन के अनुसार हम जीने के लिए भी प्रयास कर रहा है, हम लोग आसक्ति दिखा रहे हैं परमेश्वर के सामने क्या नहीं है? हम लोग अपन का अपन जीवित में फरकना है ब्रदर्स। सुवार्ता करना निर्बंध है, और उसका अंदर आसक्ति भी रहने का बोल निर्बंध है परमेश्वर के वचन में। और हम सुवार्ता करने के लिए गए तो एक रूल्स भी बताया हमको, पूर्ण क्या बोल रहे, पूर्ण दीर्घ शांति से उपदेश करना है। और मतलब రెండవ వచనం చదవండి. వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడము, संपूर्णమైన దీర్ఘశాంతముతో, संपूर्ण दीर्घ शांति तो हम लोग उपदेश करना है, और गदर भी करना है, और उनको ब्रदर గద్దించుము, बुद्धि చెప్పము। 3 सब्जेक्ट लिख रहा है हम लोग को। खंडा करने का अलग है और सौटी करने का अलग है,
और बुद्धि जब अलग है। तो ये इसके बारे में हम लोग आज ध्यान कर रहे हैं क्या नहीं है ब्रदर्स, और परमेश्वर का साथ में हम आसक्ति में जी रहे हैं या नहीं है, अनुकूल समय में अनानुकूल समय परमेश्वर का साथ सुवार्थ के लिए हम रेडी हो रहा है क्या नहीं है। हम अपना जीवित में आज हम लोग चेकिंग करेंगे। థర్డ్ వచనం చదవండి, మూడవ వచనం. ఎందుకనగా నరులు హితబోధను సహింపక ఆ, దురద చెవులు గలవారై ఉమ్, తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన ఆ, బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవినీయక हाँ. కల్పనా కథల వైపునకు తిరుగు కాలం వచ్చును. पौलुस बोल रहे तिमोथी को, पौलुस तिमोथी तुम ऐसा ऐसा सुवार्थ करो, आप बुद्धि बोलो, आप खंडन करो, और आप अनानुकूल समय में और अनुकूल समय में तुम सुवार्थ करो, और पब्लिक को ये बोलो, दुनिया का इंसान को ये बोलो, एक दिन आएगा वो आदमी लोग क्या करे, कल्पना कथी को खाली सुनेगा, सत्य वचन को, सत्य बात को नहीं सुनेगा, वो अपना अपना एक एक पास्टर जी को रख लेगा, प्रवादी को रख लेगा। ऐसा वाला एक समय आएगा, ऐसा वाला एक समय आएगा तिमोथी ही, तुम सुवार्थ करो, इसके लिए तुम सुवार्थ करो, सुवार्थ में तुम आसक्ति को होकर रहो। और तिमोथी से बात कर रहे हैं पौलुस ने लास्ट मोमेंट में। पौलुस थोड़े दिन में भी मर जाने वाला है, मर जाने मतलब इस दुनिया में छोड़ के जाने वाला है, शरीर से वो दूर होने वाला है। मर जाएगा तो प्राण में नहीं है, आत्मा में नहीं मर रहे, वो शरीर से थोड़ा दूर होने वाला है। तो उस समय तिमोथी को ये सारा बोल रहे ब्रदर्स, ये केवल तिमोथी को नहीं है, पास्टर जी हम लोग सभी को बोलते हैं, कभी भी हम सभी लोग सुवार्थिक होना है, हम सभी लोग परमेश्वर का सुवार्थ करना है दुनिया में। तो ये हम सभी लोग भी निर्बंध है ब्रदर्स। फोर्थ वचन చూడండి ब्रदर. అయితే నీవు ఐదో వచనం. అయితే నీవు అన్ని విషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమ పడుము, సువార్తికుని పని చేయము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము. प्रेज द लॉर्ड. तो बोल रहे परमेश्वर उसको, तुम श्रमा, तुम क्या करना, संभलना है, तुम श्रम भी खाना है, और इस श्रम के अंदर तुम सुवार्थ करना है. हालेलुया. అపోస్తల కృతం देखो बोल रहे वचन, అపోస్తల 10:42. ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును న్యాయాధిపతినిగా నియమించిన వాడు ఈయనే అని ప్రజలకు ప్రకటించి దృఢ సాక్ష్యం ఇవ్వాలని మాకు ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆತನೇ ಜೀವಿತರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ सारो. ये सुवार्थ करना है हम आज दुनिया में. कौन सा सुवार्थ है? ये सुवार्थ करना है. यीशु ने प्रभु है, यीशु ने प्रत्यक्ष होने वाला है, यीशु ने हम लोग नित्य जीव में लेके जाने वाला है. ये सुवार्थ आज हम लोग दुनिया में करना है ब्रदर्स. तिमोथी को यही लिख रहा है, यही सुवार्थ के बारे में बोल रहा है तिमोथी को पौलुस ने. तो ये सुवार्थ में हम लोग आज बहुत दिन से वचन सुन रहे हैं, बहुत दिन वचन पढ़ रहा है, तो इसका फल हम लोग को मिल रहा है क्या नहीं है. आज हम लोग फरकना है अपना दिल को. और एक अध्याय में भी हम लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा. सेकंड थेसलोनिक ब्रदर्स, सेकंड थेसलोनिक 1:7 ప్రభువైన యేసు తన ప్రభావమును కనపరుచు దూతలతో కూడా పరలోకము నుండి అగ్ని జ్వాలలో ప్రత్యక్షమై దేవుడు నెరగని వారికిని మన ప్రభువైన యేసు సువార్తకు లోబడని వారికిని ప్రతిదండన చేయనప్పుడు మిమ్మల్ని శ్రమపరచు వారికి శ్రమయు, శ్రమ పొందుచున్న మీకు మాతో కూడా విశ్రాంతియు అనుగ్రహించడం దేవునికి న్యాయమే. प्रेज द लॉर्ड. 7 और 8 वचन में बोल रहा है, ಯಾವಾಗ ಕೊಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರ ಅರಿಯದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವನು. हालेलुया. बोल रहे उधर, जो परमेश्वर का सुवार्थ का अंदर जो आदमी नहीं होएगा उनको भी, और जो सुवार्थ कर रहे हैं उनको भी, दोनों को भी उस दिन न्याय हिसाब रहेगा. बोल गए बच्चे में हम लोग क्लियरिटी बोल रहे हैं. तो सुवार्ता बोल दो एक साधारण नहीं है, वो अपना प्रभु का काम है. सुवार्ता स्वर्ग का काम है. सुवार्ता एक पापीय आदमी को नित्य जीव में लेके आने का सुवार्ता है ब्रदर्स. ये सुवार्ता आज हम लोग करने के लिए परमेश्वर बहुत वचन से हमको बात कर रहा है. तो हम लोग और भी
तैयार होना चाहिए उनका सुवार्ता के लिए। परमेश्वर के पास हम पूछ रहे हैं, परमेश्वर आपका परिशुद्ध आत्मा दे दो, मैं सुवार्ता के लिए तैयार है। सोलोमन ने ऐसा ही प्रार्थना किया। सोलोमन को जब राज्याभिषेक मिला, दावीद ने दिया, उसके बाद उन्होंने दावीद का पापा का जो रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो किया। उसके बाद में जो परमेश्वर का यज्ञ करने का या परमेश्वर का अच्छा न्याय धर्मशास्त्र का बात वो अच्छा परिपालन कर रहा था सोलोमन ने। उसके बाद बात कर रहे परमेश्वर सोलोमन को, सोलोमन आपका धर्मशास्त्र का नीति न्याय कार्य में देख लिया, मैं बहुत आनंदित हूं। सोलोमन आपको क्या चाहिए बोलो, मैं देगा। तो सोलोमन ने ऐसे ही प्रार्थना किया, प्रभु మీరు నాకు ఇంతమందికి ఇచ్చారు, ఇంత పెద్ద ఇజ్రాయెల్ జనానికి ఇచ్చారు, నాకంత జ్ఞానం లేదు ప్రభు, నాకు జ్ఞానం ఇచ్చండి। ఎలా జ్ఞానం ఇవ్వాలి మీరంటే न्याय करने का ज्ञान నాకు ఇచ్చే ప్రభు। అలా దేవుడి దగ్గర అతను అడుగుకున్నాం బ్రదర్స్। तो आज हम लोग कितना दिन से सुवार्ता सुन रहा है, ఎంత రోజు నుంచి మనం వింటున్నారు వచనం, చదువుతున్నారు వచనం। సో ఈ రోజు మనం తయారవుతున్నారా లేకపోతే అలాగే మన జీవితం వెళ్ళిపోతుందా? कोई हम लोग का जीवित चल रहा है क्या? कभी सुवार्ता करेगा, कौन सुवार्ता करेगा? परमेश्वर स्वर्ग से प्रति रोज देख रहा बोल के बोल रहा है वचन में। ప్రతి రోజు ప్రభు పైకి నుంచి చూస్తున్నారు, నా మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారా, నా కోసం ఎవరైతే వెళ్తున్నారా అనేసి। तो आज हम लोग ओ वचन के लिए परमेश्वर का ఈ మాట కోసం మనం ఏం చెప్తున్నారు ఈ రోజు ప్రభుకు సమాధానం? హల్లెలూయా। तो మనం నిజంగా దేవుడి దగ్గర జీవిస్తున్నారా అంటే మనం ప్రభు దగ్గర అడగదాం ఈ రోజు అందరూ। अगर सुवार्ता नहीं करे, अगर सुवार्ता का अंदर हम लोग नहीं जिए तो ఒక్క రోజు మనం పనిష్మెంట్ ఉంది బ్రదర్స్। అదే చెప్పాడు ఇక్కడ 2 దశలోనికలో, నేను ఒక రోజు పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తానని చెప్తాడు దేవుడు। మనం సువార్త చేయాలి, సువార్త లోపల మనం జీవించాలి, వాడపడాలి, మనం లోపల వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఒక రోజు మనం చాలా కష్టం ఉంది బ్రదర్స్। సో మనం ఫాదర్ మాట, మనం తండ్రి మాట మనకి छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको एक बड़ा बात समझ के समझना ही पड़ेगा। क्योंकि पौलुस ऐसा बोल रहा है, मैं परमेश्वर का सामने प्रभु का मुंदु और प्रभु कर रहा प्रत्यक्ष का ऊपर मैं आना कर रहा हूं, आने मैं आप लोग को पौलुस बोल तिमोथी को तुम सुवार्ता करना है। तो ब्रदर्स परमेश्वर आज हम लोग को एक अच्छा संग दिया है, अच्छा एक सुवार्ता परमेश्वर का दास को हम लोग परमेश्वर हमको दिया है। तो आज हम रेडी होना चाहिए ब्रदर्स। मैं एक पास्टर को नहीं 2-3 पास्टर को ऐसा बोला है, और मेरा घर में आएगा तो कभी एक पास्टर को 2 पास्टर को मैं बोला है, खाली मेरे को आशीर्वाद के लिए मेरा बीबी बच्चे को मत बोलो, आप नित्य जीव के लिए बोलो, मैं खुशी हूं। हालेलुया। पास्टर जी को बोलने के बाद फिर भी प्रार्थना कर रहे आशीर्वाद करो। तो ऐसा वाला एक सिचुएशन आज दुनिया में चल रहा है। मनुष्य को खाली क्या करने का, सड़ू बोलते हैं कन्नड़ में, मनुष्य को खींचने का, 4 आदमी को नीचे रख लेने का। आज ये सब एक संघ का एक काम चल रहा है ब्रदर्स। तो आज हम लोग सत्य सुवार्ता विन्नी चदुवी ఈ రోజు మనం कैसे है, कौन सा गुंप में, कौन सा टीम में आज ప్రభు का सामने దగ్గర మనం జీవిస్తున్నాం? ఈ మాట మనం ఈ రోజు మనం చెకప్ చేసుకోవాలి బ్రదర్ మన హృదయం। హల్లెలూయా। ఇంకొక 2వ అధ్యాయం కూడా మనం చూద్దాం బ్రదర్స్। యువన విషయం మనం ఆల్రెడీ చూశారు కదా లాస్ట్ టైంలో కదా। యువనకి ఎప్పుడు దేవుడు చెప్పారో అతను ఒకసారి వెళ్ళలేదు, కానీ మళ్ళీ దేవుడు మంచి తెలుసుకున్న తర్వాత అతను వెళ్ళిపోయి సువార్త చేశారు। ఎంతో మందికి ఆ సువార్త చేసి ఎంతో మందికి అక్కడ రక్షణ దొరికిపోయింది బ్రదర్స్। సువార్త చేయాలి మనది, ప్రభు దగ్గర తీసుకున్న ప్రభు పని అది। హల్లెలూయా। सुवार्ता करने का बोल रहा परमेश्वर। तिमोथी को भी पौलुस लिख रहा है, तुम सुवार्ता करो, करना ही चाहिए। मैं दुनिया से मैं दूर हो रहे, मैं देह से दूर हो रहे, तिमोथी बेटा तुम सुवार्ता करो, करना ही है। और एक वचन में तिमोथी नहीं अपोस्तल और एक बार पढ़ेगा ब्रदर। अपोस्तल करते हैं 6 अध्याय 31 वर्ड्स। 6వ అధ్యాయం 31 సారీ 16 అందుకు వారు
ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీకును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి అతనికి అతని ఇంటనున్న వారికి అందరికీ దేవుని వాక్యం బోధించింది. प्रेज द लॉर्ड। ये सुवार्ता करो बोल रहा परमेश्वर। पौलुस भी यही सुवार्ता बोल रहा तिमोथी को, सुवार्ता करो। सुवार्ता कौन सा सुवार्ता है? परमेश्वर को राज्य के बारे में बताओ, प्रत्यक्ष के बारे में बताओ, और बहुत लोगों को रक्षण के बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर फिर से आने वाला है। मल्ली वस्त्र प्रभु ఈ సువార్త చేయి, ఈ సువార్త చేయంటే మళ్ళీ ప్రభు మనం ఈరోజు చెప్తున్నాం కదా క్రీస్తు సంఘాలకి. तो మనం ఈ సువార్త ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉందాం। हम लोग अपना अपना हृदय को तैयार करेंगे परमेश्वर के सामने। प्रभु आज मेरे को रक्षण के बारे में आप बात किया, सुवार्త के बारे में बात किया, ఇగో ప్రభు నేను ఉన్నాను అలా మనం ప్రార్థన చేస్తాం కదా దేవుడి దగ్గర। కంపల్సరిగా నాకు ఇచ్చి దేవుడు మీకు కూడా ఇస్తారు, పాస్టర్కి ఇచ్చి దేవుడు మీకు కూడా ఇస్తారు। హల్లెలూయా। మనం అందరికీ ఇస్తారు దేవుడు। దేవుడు మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ, వస్తారు లేదనేసి, వస్తారు లేదనేసి। वो आएगा आएगा बोल के परमेश्वर वेटिंग में। अगर हम परमेश्वर के पास ले जाए तो कितना परमेश्वर संतोष करेगा हमारे बारे में। हालेलुया। और एक वचन देखो ब्रदर, ये अपोस्तल लास्ट वचन पढ़ेंगे। अपोस्तल कहते ही 28 और 30 कैसे पौलुस ने वचन सुवार्త किया देखो। పౌలు हाँ पौलुस సంవత్సరములు పూర్తిగా हाँ తన అద్దె ఇంట కాపురం ఉండి हाँ తన యొద్దకు వచ్చి వారిని అందరినీ हाँ సన్మానించి ఆ. ఏ ఆటంకమును లేక ఆ. పూర్ణ ధైర్యంతో ఆ. దేవుని రాజ్యమును గురించి ప్రకటించుచు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించిన సంగతులు బోధించుచు ఉండెను। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर और एक बार उसमें ये आया, उसका रेंट से रूम लिया बोलता है उनका लगा। हाँ कैसे सुवार्ता किया देखो पौलुस ने। उनका रेंट से रोम का जगह में जाके, रोम में जाके काम करके रेंट रूम लेके और रेंट रूम में परमेश्वर का सुवार्ता कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए पौलुस ने आज बोल रहा है, ए तिमोथी मैं जाने का टाइम हो गया, मेरे को जो मिलने वाला किरीट है वो मेरे लिए रेडी है, मैं जा रहा हूं। और आप भी करो आपका काम, आप भी सुवार्ता करो बेटा, आपका भी किरीटा है। वही लिखा लास्ट में जो हम लोग तिमोथी में है ना, तिमोथी में आ जाओ, वो लास्ट वचन में 8 वचन में 7 और 8 చదవండి కదా। ఇక మీదట మా మంచి పోరాటం పోరాడి తిని हाँ నా కొరకు కడముట్టించి తిని ఆ. విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఆ. ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది। హ్మ్. ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభువు హ్మ్. అది నాకు మాత్రమే కాకుండా ఆ. తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికి అనుగ్రహించును। हालेलुया। हालेलुया। ये तिमोथी ये मेरा लिए नहीं है, ये सभी लोग के लिए जो परमेश्वर का जो न्याय नीति में जीता है, जो परमेश्वर का प्रत्यक्ष में जो आदमी दृष्टि रखा है, जो परमेश्वर का प्रत्यक्ष के लिए वेटिंग कर रहे हैं, ये सारा लोग को ये किरीट मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आज बहुत खुशी है, आज हम सभी लोग खुशी होना चाहिए। मेरे को भी मेरा परमेश्वर एक नित्य जीव एक जयमाल देगा, एक किरीट देगा बोल के हम विश्वास में से जीना ब्रदर्स। ये सुवार्थ में हम लोग भला होना चाहिए, ये सुवार्थ में हम लोग क्या है शक्तिमान बनना है। इतने वचन हम लोग पढ़ने के बाद, इतनी सुवार्ता हमारे जीवित में होने के बाद अभी भी हम सुवार्ता नहीं करेगा तो बहुत बहुत परमेश्वर दुखी की बात है। జ్ఞానం नहीं है तो पूछो बोल रहा परमेश्वर, నీకు ఏం వర కావాలి అడుగు తెలుస్తాను కొడుకో చెప్తున్నా దేవుడు। ఇంకా ఏం చెప్పాలి దేవుడు మనకి, ఇంకా ఏ మాట మనం దేవుడు చెప్పాలి। हालेलुया। तो ब्रदर्स आज हम लोग रेडी हो जाएंगे परमेश्वर के पास। आज से हम और भी पूछेंगे परमेश्वर నాకు ఏం వరం ఇస్తావు మీరు ఇచ్చండి ప్రభు, నేను చేస్తాను। నీకు వరం లేకపోతే నేను జీవించ आवत प्रभु, मैं जीवन कर नहीं सकता है बल्कि परमेश्वर के पास हम लोग उनका वरा पूछेंगे हम। और एक बदले में देखेगा तो मालूम पड़ता है थिस्सलुनीक में लगता है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, वो वचन में बात कर रहा है। हाँ वो किधर भी है, ओके। वो वचन में ऐसा लिखा है, ये मनुष्य ये हृदय से हो ये आत्म से जो भी करेगा उसका प्रतिफल एक दिन है बोल के परमेश्वर वचन में बोल रहा था। तो आज हमारा हृदय से, हमारा प्राण से, हमारा आत्म से उनका पास में जी रहा है या नहीं है।
उनका सुवार्थ के अनुसार हम लोग जी रहा है कि नहीं है। अपने पर हृदय को हम लोग आज से और भी बलिष्ठ करना है। सोचने का और आसक्ति का काम और भी हम लोग का जिंदगी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आसक्ति और परमेश्वर के पास जाने का और आसक्ति से जाने का बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल परमेश्वर का आराधना में जाने का और आसक्ति से जाने का बहुत व्यत्यास है। तो हमारा जीवित में आज आसक्ति है या पास्टर के लिए देख के जा रहा है या ब्रदर के लिए देख के जाना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर जी फोन करेगा, इसके लिए जा रहा है। किसके लिए आज हम परमेश्वर वचन के पास जी रहा है? मैं विश्वास करता हूं, मैं नम्मुतानु ब्रदर्स ఇక్కడ అందరూ మనం దేవుని భయపట్టుకునే వస్త్రాలు అనేసి हालेलुया। लेकिन आज फिर भी हम लोग हमारा दिल में हम लोग का दिल बलिष्ठ करेंगे, हमारा दिल परमेश्वर के पास बलिष्ठ करेंगे, परमेश्वर के पास आसक्ति से जिएंगे, क्योंकि आसक्ति वालों को परमेश्वर कभी भी देख रहा है, कभी भी देखेगा बोल के परमेश्वर ने वादा किया है, प्रॉमिस कर रहा है। तो हम आज से उनका सुवार्थ के लिए, उनका नीति न्याय के लिए और परमेश्वर का आगमन के लिए, प्रत्यक्षता के लिए हम और भी दिन दिन आसक्ति से जीना बोल के ये वचन आप सभी लोगों को और मेरे को परमेश्वर आशीष कीजिए। आमीन।